स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर व्हिच इज डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो है वो बाय डेफिनेशन इट्स अ सिक्योरिटी, is a financial security whose value is derived in part from another security's characteristic or value। तो बाय डेफिनेशन अगर आप देखें ना, बाय डेफिनेशन तो डेरिवेटिव की अपनी कोई जो है वो एज सच वैल्यू नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव की वैल्यू ड्राइव हो रही होती है एक अंडरलाइन सिक्योरिटी की वैल्यू से, ठीक है। दैट अंडरलाइन सिक्योरिटी कैन बी अ स्टॉक, ठीक है, इट कैन बी अ बॉन्ड, ठीक है। तो वो कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो सकती है। अभी तक हमने जितनी स्टडी की है, पीछे हमने जितना पढ़ा है, हमने ज्यादातर बात की है स्टॉक की, ठीक है। तो हमने जो है वो बॉन्ड्स पे बहुत ज्यादा, हमने कॉलेबल बॉन्ड्स, पुटेबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हमारे करिकुलम में इन्होंने बॉन्ड के डेरिवेटिव से बहुत ज्यादा बातें नहीं की भी। they primarily cover the derivatives on the stock value और उससे वो समझाने की कोशिश करते हैं। But nevertheless, the concept remains same for bonds also, and that is and obviously your derivative value revolves around the value of the stock। तो for example हमने पहले बात की थी कि जी स्टॉक जो है वो $23 का है, ठीक है, उसका स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अभी उसकी करंट प्राइस जो है जी $20 है, ठीक है। तो अगर हमने देखा था कि अगर वो बढ़ के $25 हो जाएंगे तो क्या होगा, और हमने देखा था कि अगर बढ़ के वो फॉर एग्जाम्पल गिर के $17 हो जाएंगे तो क्या होगा, पुट के केस में क्या होगा, और जी कॉल के केस में क्या होगा। तो ये वाली सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट बाय डेफिनेशन अ डेरिवेटिव सिक्योरिटी इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है ऑन अनदर अंडरलाइन सिक्योरिटी, and it doesn't have its own value basically. It has a value, but that is mainly derived on by the value of the stock। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जी अगर वो जो है वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हैं तो क्या होगा वैल्यू का, और स्टॉक प्राइस नीचे जाते हैं क्यों, क्या होगा। फिर हमने ग्रीक्स में ये भी पढ़ा कि मेच्योरिटी में क्या होगा, इंटरेस्ट सॉरी रिस्क फ्री रेट की वजह से क्या होगा। वी आल्सो स्टडीड व्हाट हैपेंस इफ वोलेटिलिटी चेंजेस, ठीक है। तो we studied all sort of combination that can impact the value of a derivative in our Greek chapter, and we tried to analyze that what would be an impact on the value of the derivative if it's at the money, if it's deep in the money, or if it is out of the money, ठीक है। ये concept आगे जाके भी आएगा, but we have already told you that if your spot price is your equal to your strike price, then you are at the money. It means that your derivative is not having any value, okay। So basically if you write that contract, if you pay your premium to purchase that call, you will lose that premium value, because the ultimate value of that bond and maturity would be zero. If you are at a loss, okay, so if you are losing money, or in other words, if it's a call option and the price is actually lower than higher than the price, then you will be uh, out of the money, okay. So out of the money is the position when you are actually losing money, and in the money is the position when you are actually in profit। So out of the money is actually loss, and in the money is actually profit, okay। So these are the terms that we have been using for and again during book 4 also, okay। But I just wanted to remind these concepts that what strike price is. Strike price X is again is the price at which your stock uh, will be will be valued at, okay। So if you have a call option, for example, at this value at 23, and your derivative will be compared to this value to calculate the loss or the profit, then it will be called a strike price or exercise price। So it has 2-3 different names, okay। So this is the definition of derivative, okay।
they say that derivative can be used for financial risk management, that is hedging. uh, Risk management is primarily obviously hedging when you are trying to manage your losses, to manage your risk. So that is what we call as managed risk management. It can be used for speculation. Speculation is a phenomena where you bet against the movement of the stock. Okay, so you are basically trying to bet and make money out of it. Okay, so speculation is actually opposite of the risk management or hedging. In speculation, you try to make money out of the trends. Okay, so and obviously you can lose money also. Then for the diversification of exposure as an exposure to a bond. Uh, uh, so basically, they are saying that it can also be used for diversification of exposure, where you want to diversify your exposure, or it's a form of hedging again. But you can use it for diversifying your exposure. Then, as an added feature to a bond, or convertible or callable, we talked about it. You can use it as employee compensation in takeoff in the case of stock options. So it is very uncommon here, but when we talk about the culture in the US, especially in the startup setup, okay. So when you start working on a startup, and for example, it's valued in negative, okay. Negative by mean it has just started working. Okay? So to attract the talent, what they will do, they will say that take, let's say, 30,000 per dollars, and we are giving you 1,000 stocks. Okay, so whenever, and this mostly happen when the company is not listed. Okay, so the shares are actually not worth that much. But if that company kicks off, if it goes well, for example, a Facebook example ले लें, ठीक है, या आप Uber की example ले लें, या दूसरी किसी भी example ले लें, this stock price, share price actually goes up, and people actually get billionaires in a night if they had this stocks available. I read this story of one of the secretaries of Jack Ma, the founder of Alibaba, and he wrote that his secretary had been working for many years, and he actually made him, I don't know, 1.8% or 1.8%. There was some number, okay. So she actually owned this amount, this percentage of the stock, and Jack Ma kept saying her that if that happens, you are going to be a billionaire. And she kept waiting for many years. And once Alibaba went listed, she suddenly became a millionaire. Okay, so people do that as to attract the talent as form of compensation in stock options. Then it is also used within a capital project as embedded option. Okay, so in the capital projects where you are financing, where their derivatives can also be used. Okay, so this is the definition, and this is the use for derivatives. Then this is something that we discussed initially, that derivatives can be linear and it can be non-linear. Okay, so we studied that linear derivatives are the ones with like forward and future contracts that have linear payoff, and that is directly related to the value of the underline. Okay, so in future you know that in forward, for example, you know that at this point what will be your value. Okay, so if you purchase a forward, for example, in case of currency, you purchase a forward of 107, or let's say 167 PKR per USD. Okay, so and it's a risk walk, then you will know that what will be the value based on your currency. But in derivatives, it's non-linear because it has complexity on a lot of things. Okay, so it will be depending on the volatility, it will be depending on the risk-free rate, it will be depending on the underlying price, it will be depend on the time that has remained from the future. So it has a lot of things that can impact that
that happens. So basically for forwards and futures, it's usually what we call as a zero sum game. Okay, so my gain, your loss, zero sum game. My gain, your loss, my loss, your gain. Okay, so this is how it works again. So simple होता है, आपको पता होता है कि इतने का फायदा हो सकता है, इतने का नुकसान हो सकता है. बट डेरिवेटिव्स में आपको ये चीज नहीं पता होती. प्लस डेरिवेटिव्स में यू हैव अ प्रीमियम अवेलेबल, तो आपने कुछ ना कुछ पे करना है, ठीक है. तो वो पेमेंट क्या है, उसमें टैक्सेस क्या है, ठीक है, फिर इतने सारे फैक्टर्स हैं. तो these all of these things make ये जीरो सम गेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. All of these things make derivatives at non-linear and forward and futures as linear derivatives. अच्छा, linear से मुराद ये है कि ये इस तरीके का हमने पहले पढ़ा था ना, करके जो है वो यूं करके चल रहा होगा, ठीक है, अचानक से बढ़ना शुरू करेगा. और नॉन लीनियर से मुराद ये कि आपका जो है वो एक कोई और पैटर्न एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज कम हो रही है, ये चीज जो है वो एक पैटर्न में बढ़ रही है, ठीक है. दिस इज व्हाई वी कॉल लीनियर. लीनियर रिग्रेशन में हमने पढ़ी थी, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो है वो एक पैटर्न नहीं है, ये कम से बढ़ेगा तो शायद ज्यादा बढ़ जाए, ये ज्यादा बढ़ा ये अभी भी कम बढ़ रहा है, ये और ज्यादा बढ़ा ये अभी भी कम है, ठीक है. प्रोपोर्शन कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी एनी रिलेशन दैट वी कैन हैव, लेकिन कुछ भी होगा बट लीनियर नहीं होगा, ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस. फिर जो है वो हमारी जो है वो दो टाइप्स हैं ट्रेडिशनल डेरिवेटिव्स की. तो सॉरी, ट्रेडिशनल डेरिवेटिव एक्सचेंजेस की, यहाँ पे एक्सचेंजेस भी होना चाहिए था, ठीक है. क्या टाइप्स हैं, पहली टाइप है ओपन आउटक्राई सिस्टम और दूसरी टाइप है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है. तो ओपन क्राई सिस्टम, आउटक्राई सिस्टम हमने जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किया, बट एक वक्त था हमारे कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो लोग फ्लोर पे खड़े होकर जो है ना वो पर्चियां लेके आवाजें लगा रहे होते थे, ठीक है. और उस पे जो है वो बोलियां चल रही होती थी और एक जो है वो शोर गोल मचा होता था, ठीक है. और उसमें जो है वो जी प्राइसिंग हो रही होती थी, ठीक है. और बाहर आपको पता नहीं, अगर आप चंडीगढ़ पे आप कभी आपका चक्कर लगा ही होगा है, तो जो के बाहर के इलेक्ट्रिक के बाहर जो मेन चंडीगढ़ पे एक ना बहुत बड़ा सा रोड पे बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है. वो अब नहीं चलता, बट वहां पे जो है वो ना वो के इलेक्ट्रिक चढ़ा हुआ है, तो आजकल के है ना. तो जो हमारा पीएसएक्स है बेसिकली कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो है वो बोर्ड बाहर लगा होता था और उस पे जो है वो नंबर आ रहे होते थे इंडेक्स के, ठीक है. तो अभी आप वो तो बोर्ड खत्म हो गया, बट अभी आप जो है वो जब भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाएं, मेरा चक्कर लगा है, मैंने ट्रेनिंग वगैरह करवाई थी और कुछ वर्ष पहले, तो उनके बाहर फ्लोर से लेके लिफ्ट से लेके हर जगह जो है वो एक स्क्रीन लगी होगी और वहां पे जो है वो उसका इंडेक्स आ रहा होगा, यहाँ पे जो उसकी समरी आ रही होगी और सेक्टर की रिपोर्ट आ रही होगी, ग्राफ आ रहे होंगे, टिकट चल रहा होगा, ठीक है. तो वो मेन फ्लोर पे भी होता है और जो है वो मेन उस पे सारी जगहों पे भी होता है, ठीक है. तो आउट क्राई सिस्टम क्या था, आउट क्राई सिस्टम वो था जिसपे लोग खड़े होकर फिजिकली जो है वो बैट लगाते थे, बेसिकली बोलियां लगाते थे और फिजिकली चीजें जो है वो खरीदते बेचते थे. अब जो है वो चीज रिप्लेस हो गई है और अब आ गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, जो आपको पता है कि जो है वो ब्रोकर के थ्रू या इंटरबैंक के थ्रू जो है वो थ्रू टेलीफोन, थ्रू रेटर्स का एक सिस्टम आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या ब्लूमबर्ग का सिस्टम आता है. तो उसमें चैट्स ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो जितने डीलर्स होते हैं वो चैट पे जो है वो आपकी बिड्स डाल रहे होते हैं, मार्केट उन्हें पता होती है क्या बिड्स चल रही, क्या बिड्स नहीं चल रही, और वो फोन के थ्रू और उस चैट के थ्रू जो है वो मतलब बेसिक तरीका ये होता है कि वो एक जो ट्रेजरी की डील है फॉर एग्जांपल, वो पहले आपसे चैट पे बात कर लेगा, यहाँ आगे इंटरबैंक की बात कर रहा हूँ, फिर वो आपको कॉल करेगा डीलर, और कॉल में जो है वो उसी बैट मतलब जो भी डील हुई है उसका रेट जो है वो कंफर्म करेगा, क्योंकि ये कॉल्स जो होती है क्या होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, तो टू ब्रिंग इट टू रिकॉर्ड वही काम करता है. चैट भी रिकॉर्डेड होती है वैसे तो, बट स्टेट बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक वो क्या करता है, उसे वहां पे रिस्पॉन्स करता है और उसे वो करता है रिकॉर्ड कराता है, ठीक है. तो वो इंटरबैंक हो गया और ये आउटक्राई सिस्टम हो गया. जो आउटक्राई सिस्टम है वो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड से शुरू हुआ था, ठीक है, सीबीओटी, और जो वो है इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है, वो जो है वो नैस्डैक वगैरह पे चल रहा होता है.
अच्छा, मैंने जाके चेक किया था, जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि ये जो है ना वो सीबीओटी वाली इन्होंने कोई पुरानी बात कर दी है और अब ऐसा नहीं होता होगा, बट आई केम टू नो कि नहीं, अभी भी आउट क्राई सिस्टम जो है वो सीबीओटी पे चल रहा होता है, लेकिन उसके जो क्वांटम है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बट दे हैव स्टिल कंटेनर इट, दे स्टिल हैव दिस फ्लोर अवेलेबल where people come, where people think, purchase and sell things physically, ठीक है, तो it's still applicable in the Chicago Board of Trade CBOT पे, बट उसका क्वांटम जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, ठीक है, तो ये हमारी ट्रेडिशनल डेरिवेटिव एक्सचेंजेस हैं जो कि दुनिया में चल रही होती है। अच्छा, फिर आ जाती है हमारी एक मार्केट जिसे कहते हैं ओटीसी या ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है। अच्छा, ओवर द काउंटर या ओटीसी मार्केट वो मार्केट है जो कि एक्चुअली अब बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है, दैट इज द करंट प्रैक्टिस इन व्हिच डीलर्स either deal directly, ठीक है, either dealer to dealer or they get connected through a broker, okay। अभी इंडिया की मैं खबर पढ़ रहा था, उन्होंने जो है ना वो ब्रोकर्स का रोल काम करना शुरू कर दिया है इक्विटी मार्केट में, ठीक है। अभी तो हमारे पाकिस्तान में एक इंडिविजुअल जो है वो मार्केट में नहीं जा सकता ना, दे विल हैव टू कॉन्टैक्ट इट थ्रू ब्रोकर, और ब्रोकर डील करवा रहा होता है, ठीक है। जस्ट मैं एक साइड की आपको फीस बता रहा हूँ, बट इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी आप लोगों ने प्रेजेंट नहीं लगाई है, मुझे मैसेज नहीं आया, मैसेज करना। ओके, सो बेसिकली ब्रोकर का वहां पे वो रोल जो है वो खत्म कर रहा है। एनीवे, तो ओवर द काउंटर सिस्टम में क्या आ रहा होता है, इट डिफर्स फ्रॉम अ ट्रेडिशनल एक्सचेंज in that the end dealers you would contact each other either directly or through a broker, frequently use inter deal to transact with each other, okay। So a dealer mainly maintains bid and offer prices in a security and stands ready to buy or sell lots of the given security। lots से मुराद ये हमारी, क्या हमने पहले पढ़ा था ना कि एक जो है वो हमारी फॉर एग्जांपल एक जो है वो कॉल की लॉट में फॉर एग्जांपल 100 जो है वो कॉल्स होती हैं, कॉल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, एक लॉट में, तो इस तरह लॉट बिक्री होती है, ठीक है। तो एक लॉट में फॉर एग्जांपल हमारे 100 शेयर्स हैं इक्विटी के, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लॉट इक्विटी में ज्यादा जो है वो लॉट पे डीलिंग हो रही होती है। फिर the OTC market typically involves much larger trades than traditional exchanges। The OTC market is several times the size of the traditional market। साइज भी बताया हुआ है कि बेसिकली 2017 में OTC market is 530 trillion dollar, okay, and the exchange traded was 80 trillion dollars, okay। So this is like a massive, I think the OTC market is, I think, at least 6 times or even 7 times greater than the exchange traded market। Exchange traded market is the one that we will just study। Exchange traded market अभी हम आगे पढ़ लेंगे। It's basically the market where an exchange is involved। तो फॉर एग्जांपल बीच में जो है ना एक रेगुलेटर इन्वॉल्व होगा, और वो रेगुलेटर जो है वो डीलर 1 और डीलर 2 और डीलर 2 डीलर 3 डीलर 4 को लिंक कर रहा होगा। तो ये आपस में जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे, ये रेगुलेटर के थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हम आगे आगे पढ़ेंगे कि उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका जो है वो क्रेडिट रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जी वो क्रेडिट रिस्क जो है वो आपका रेगुलेटर या जो भी सेंट्रल एक्सचेंज बॉडी है वो बेयर कर रही होती है, ठीक है। ओटीसी ट्रेडिंग के फायदे क्या हैं, ठीक है, कि जी टर्म्स और नॉट्स, तो जी एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, तो आपने जो है वो कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, आपको जितनी लॉट परचेज करनी है, जितनी लॉट बेचनी है आप बेच सकते हैं, जितने जो है वो आपको क्या कहते हैं पैसों पे बेचनी है आप बेच सकते हैं, ठीक है। जितनी मेच्योरिटी पे बेचनी है आप बेच सकते हैं। तो यू हैव कस्टमाइज्ड डील्स अवेलेबल इन केस ऑफ ओवर द काउंटर। Some new regulations since the credit crisis
फिर कहते हैं कि जी ट्रेडेड प्राइसेस के बाद जो है वो कुछ हमारी ऐसी रेगुलेशंस आई हैं जिसने इसके रिस्क जो है वो कम कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि स्टैंडर्डाइज ओटीसी जो डेरिवेटिव्स होता है, स्टैंडर्डाइज ओटीसी डेरिवेटिव्स जो हैं, they are now traded on swap execution facilities, which is a central counterparty is now required for standardized trades, and trades are now required to be reported to a central registry. So this method has been improved, and some of the deals are still like converted from, it still remain OTC, but there is a central counterparty involved, and all of the Ds are calculated or reported to central registry. क्योंकि पहले तो होता था ना, आपको पता ही नहीं है किसने किसे बेचा हुआ है, कब बेचा हुआ है, ठीक है। तो वो सारी डील्स जो है वो पोस्ट क्राइसिस जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। फिर ग्रेटर एनोनिमिटी है, एंड इंटरवेयर डीलर ओनली आइडेंटिफाइज। अच्छा, अगर ये ब्रोकर के थ्रू हो रही हो, अगर इसमें ब्रोकर भी इन्वॉल्व हो, ब्रोकर के थ्रू जो होती है वो भी हमारी ओटीसी की कहलाती है, ठीक है। तो अगर वो उसमें ब्रोकर इन्वॉल्व हो तो जी तब क्या होगा, तब आपको अगले के बारे में जो आपका बेचने वाला है वो तब पता चलेगा जब डील एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रोकर जो है डिस्क्लोज नहीं करता, तो आपको जो है वो ये नहीं पता होता कि आप किससे खरीद रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एन एडवांटेज, एडवांटेज इन अ सेंस के हो सकता है कि जी एचबीएल वाला समिट से ना खरीदना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे तो हर ब्रोकर अगर आप बिल्कुल पॉलिसी है तो वो बता ही देता है, बट जनरली आपका वो रेपुटेशनल वाली चीज जो है वो नहीं है वहां पे। डिसएडवांटेज क्या है कि जी ओटीसी ट्रेडिंग जो है वो उसमें मोर, इट हैज मोर क्रेडिटर्स देन एक्सचेंज ट्रेडिंग, क्योंकि डायरेक्ट डीलिंग है तो डायरेक्ट वो पैसे लेके आ सकता है। जब एक्सचेंज ट्रेडेड होगा, जब एक बीच में रेगुलेटर इन्वॉल्व होगा, तो वो उसमें रिस्क वहां पे जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। फिर कहते हैं कि जी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दैट इन एक्सचेंज ऑफ पेइंग एन ऑप्शन प्रीमियम। प्रीमियम क्या था, प्रीमियम वो $2, $3 की वो अमाउंट थी जो आप कोई भी ऑप्शन लेने के लिए, खरीदने के लिए जो है वो पे करते थे। gives the option the buyer to write but not the obligation, ठीक है। buy the right but not the obligation, this is something that we have discussed again and again and again, so I'm not going to repeat it, ठीक है। to buy in case of call option and to sell in case of put option at the pre-specified exercise or strike price to and from of the option seller within a specific time period, or depending on the type of option, a precise date that is expiry date। ये इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये कि अगर आपका जो है वो यूरोपियन होगा तो आपको एक्सपायरेशन पे ही होगा, अगर यूरोपियन नहीं अमेरिकन है तो आप उसे दोबारा उससे मैच्योरिटी से पहले भी जो है वो एक्सरसाइज करा सकते हैं, ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या है, आपके पास ये राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है टू बाय अ प्राइस, टू बाय एन ऑप्शन, या टू बाय अ सिक्योरिटी और टू परचेज अ सिक्योरिटी, ठीक है। और सेल में क्या है, ऑप्शन में क्या आपके पास सेलिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, आगे और समझ में आ जाएगा। अमेरिकन या यूरोपियन स्टाइल हमने पढ़ा था कि ये अमेरिकन वो होता है जिसमें आपके पास मैच्योरिटी से पहले जो है वो उसे एक्सरसाइज करने का ऑप्शन होता है, और यूरोपियन वो होता है जिससे आप मैच्योरिटी से पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि जी अमेरिकन ऑप्शन विल बी वर्थ मोर देन यूरोपियन ऑप्शन व्हेन द राइट worldly exercise is valuable and they will have equal value when it is not, ठीक है। तो कब होगा, जब हमने बाइनोमियल ट्री में ये पढ़ा था, यहाँ पे सी नॉट होता था, यहाँ पे ये होता था, और फिर यहाँ पे होता था। तो अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाती थी ये वाली वैल्यू से, तो हम क्या करते थे, उसे एक्सरसाइज करवा देते थे। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू इससे जो है वो कम रहती थी, इससे जो है वो कम रहती थी, तो हम क्या करते थे, उसे एक्सरसाइज नहीं करवाते थे। हमने इसमें वो भी पढ़े थे, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि प्राइस बताता है
और क्वांटिटी बताता है जो कि एक फ्यूचर में जो है वो सेल या परचेज हो रही होती है, ठीक है। फॉरवर्ड में क्या है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक है, और ये क्या है, ओवर द काउंटर या ओटीसी मार्केट में परचेज किए जाते हैं, ठीक है। तो जी एक पार्टी क्या करती है, वो लॉन्ग पोजीशन लेगी और ये एग्री करेगी कि जी वो प्राइस जो भी एसेट है उसे परचेज कर लेगी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस किसी फ्यूचर रेट पे, और जो शॉर्ट है वो क्या करेगी, वो सेल कर देगी उसी डेट पे, ठीक है। तो forward contracts are often used in foreign exchange as these contracts can be used to hedge foreign currencies. तो जहाँ पे भी हमारी रिस्क पे पोजीशन होती है ना करेंसी पे, फॉर एग्जांपल आपने डॉलर लेना है और पीकेआर पे पैसे देना है या पीकेआर लेना है और डॉलर पे पैसे देने हैं, ठीक है, तो देयर वी विल यूज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। But forward contract is not an option contract. It is still called as a derivative, but it's not an option क्योंकि आपके पास वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, जो आपकी डील हो जाती है वो डन डील होती है, आप उसको खरीदते ही हो या बेचते ही हो, ठीक है। वो आपकी किस्मत के जो है वो पैसे ऊपर है कि पैसे नीचे है, ठीक है। बट जो मेन जो फर्क है फॉरवर्ड में और फ्यूचर में वो ये होता है कि फॉरवर्ड ओवर द काउंटर होते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज होता है, मतलब आपको किसी प्राइस पे भी जो है वो मिल जाएगा। और जो फ्यूचर होता है वो क्या होता है, फ्यूचर आगे पढ़ लेता है। फ्यूचर जो है वो स्टैंडर्डाइज होता है और ट्रेड पे बेसिकली एक्सचेंज में जो है वो ट्रेड हो रहा होता है। तो दिस इज मोर फॉर्मलाइज्ड लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है, टू बाय और सेल अ कमोडिटी इन अ प्री डेजिग्नेटेड मंथ। शुरू में जो है वो डिफाइंड होगा, ठीक है, एट अ प्राइस एग्रीड अपॉन टुडे बाय द बायर सेलर। तो होगा फ्यूचर में, होगा बाद में, बट फर्क क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड है। ये आगे जाके पूरा चैप्टर है फॉरवर्ड पे और फ्यूचर में, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे कल या परसों में, ठीक है। बट ये से उसकी बेस बना रहे कि एक्चुअली वो क्या रहा होता है। अच्छा, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व है, ओके। तो जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी क्वांटिटी है, जो आपकी डिलीवरी टाइम है, जो आपकी लोकेशन है, जो आपकी कमोडिटी है, ये सब डिफाइंड होगा पहले से। आप जाएंगे और देखेंगे कि आपके मतलब की सिक्योरिटी अवेलेबल है कि नहीं। अगर तो आपके मतलब की सिक्योरिटी अवेलेबल होगी तो आप खरीद लेंगे, अगर आपके मतलब की सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होगी तो आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्रेडिट रिस्क है वो क्या होता है, क्रेडिट रिस्क इसमें जो है वो कम होता है क्योंकि ट्रेड ट्रेड इन्वॉल्व है और उसमें जो है ट्रेड इन्वॉल्व नहीं। याद है? अच्छा, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, हम दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट अब हम पढ़ेंगे कि जी उसका ऑफिशियल जो है वो हम जैसे कह लें कि फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, ओके। सो बेसिकली जो हमारा कॉल ऑप्शन है विच इज एन ऑप्शन टू बाय, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं वहां पे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है एक्स स्ट्राइक प्राइस है $25, ठीक है, सही है। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन टू बाय है, ऑप्शन टू बाय है। तो मैं कब खरीदूंगा, मैं जब खरीदना चाहूंगा जब प्राइस बढ़ के $30 का हो जाएगा, ठीक है। मैं कब नहीं खरीदूंगा, जब वो प्राइस गिर के $20 का हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने खरीदा तो और मैंने $3 ऑलरेडी पे किए हुए थे प्रीमियम में, तो तब भी मुझे $2 का लॉस होगा। तो आई विल प्रिफर हैविंग अ हायर higher stock price. So basically, I am betting against the increase in the prices. So whenever I'll take call option, I'll expect prices to increase while reaching the maturity date. If that doesn't happen, then obviously I will not be making profit out of it. Because if it goes down, then your strike price, it means that you will lose the premium that you paid to purchase that particular option. तो हमारा जो प्राइस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, CT इज इक्वल टू मैक्सिमम क्या होगा, या तो जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और वो क्या होगा, ST विच इज दिस माइनस X जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 30 है जो इस वाले केस में है और मैं माइनस करूं 25, तो मेरा क्या हो जाएगा फायदा, $5 का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जो है वो
25 से बढ़ता नहीं है, कम होके 20 हो जाता है, तो व्हाट विल इट बी? 20 माइनस 25 विल बी -5। तो मेरा मैक्सिमम ऑफ 0 ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आई विल नॉट बी अर्निंग एनीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे से ग्राफ के थ्रू भी बताते हैं, समझने के लिए देख लें, बहुत मतलब स्ट्रेटेजी जब हम आगे बढ़ाएंगे कब काम आएगा इसमें। तो बेसिकली ग्राफ में क्या हो रहा है समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पे ऑफ है। ठीक है, पे ऑफ से मुराद ये है कि हमारा फायदा हो रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है। अगर हम इसके, और ये क्या है यहाँ पे स्टैक जीरो चल रहा है, बेसिकली जीरो से मुराद ये वाला जीरो है। ठीक है, तो जहां पे स्टॉक प्राइस बराबर हो जाएगा उसके, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि अगर मैं बायर हूं, अगर मैं बायर हूं, मतलब मैंने स्टॉक खरीदा हुआ है, तो तो मेरा जो प्रीमियम है वो ये तो मैं पे कर चुका हूं। ठीक है, तो अगर मेरा जीरो पे खत्म हो जाता है तो ये वाला नुकसान तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला फायदा हो जाएगा किसका? जिसने भी उसे परचेज किया हुआ होगा, सॉरी जिसे मैंने बेचा होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रीमियम आ गया। प्रीमियम की रेट यहाँ पे चल रही है, और फिर ये जो है वो इस तरीके से जो है वो बढ़ना शुरू होती है। अभी आगे इस पे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कि जब हमारा स्ट्राइक प्राइस है तो क्या होगा। सही है, तो अगर हमारा बेसिकली ये हमारा जीरो पे लाइन चल रही है, या क्या यहाँ पे आकर रुकती है। ठीक है, इसे हम लेके जाते हैं स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये वो प्राइस है जिसपे ये चीज क्या होगी? हमारी जीरो होगी। ठीक है, और हमारा यहाँ पे और यहाँ पे फायदा ड्राइव हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर जीरो हो गया और मैंने पे किया हुआ था $3 और मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ था, तो $3 मेरा लॉस हो जाएगा, और जिसे मैंने बेचा हुआ था उसे $3 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये यहाँ पे प्रीमियम जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, जैसे जैसे अब यहाँ पे जब मैं आ गया, अगर उसके जो प्रीमियम है, ठीक है, वो क्या हो, यहाँ पे इधर आगे दो ऑप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 25-30 वाली का, तो ये लेट्स सपोज ये क्या है? 25 है। ठीक है, तो अगर 25 से प्राइस ऊपर जाना शुरू होंगे और वो 30 को रीच कर रहे होंगे, तो क्या होगा? आ, तो क्या होगा? जो मेरा एस टी माइनस एक्स है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या होगी? ऊपर जाना शुरू होगी। ऊपर जाने से मुराद ये कि जब 25 से 26 होगा तो वो इतना बढ़ जाएगा, 26 से 27 होगा तो वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो जिस जिस तरीके से प्राइस बढ़ेगा उस तरीके से जो है वो मेरा यहाँ पे मेरा बायर पे ऑफ या जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा होगा। सही है, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसका प्राइस जो है वो वैसे वैसे जो है वो कम हो रहा होगा। ठीक है, तो एक तो हमारा ये प्राइस ऊपर नीचे का हो गया, और उसके साथ एक ये वाली लाइन चल रही है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये किससे एडजस्ट हो रही होंगी? ये एडजस्ट हो रही होंगी आपके प्रीमियम से, जिसे इन्होंने बोला है सी नॉट, जिसे इन्होंने बोला है सी नॉट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका स्ट्राइक प्राइस था 25। ठीक है, वो 25 से बढ़ के हो गया 28। सही है, लेकिन आपने $3 जो है वो उसका ऑलरेडी जो है वो $3 आपने ऑलरेडी प्रीमियम पे किया हुआ था। $3 ऑलरेडी प्रीमियम पे किया हुआ था। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया 28 माइनस 25, यहाँ पे तो आपको फायदा हो रहा है, लेकिन आपने क्योंकि ऑलरेडी 3 पे किया हुआ, तो यहाँ पे आप जो है वो क्या आ गए? ब्रेक इवन पे आ गए। ठीक है, जीरो पे आ गए बेसिकली। ठीक है, तो आपका नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आपका फायदा भी नहीं हुआ। और फ्रॉम अ सेलर पर्सपेक्टिव आपका क्या हो गया? बेसिकली अगर वो 25 से नीचे चला जाता है और 22 पे चला जाता है, तो इसका जो आपका जो सेलर होगा उसे क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। ठीक है, जब भी जो है वो ये वाली राइट रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर चल रही है,
ये क्या है बेसिकली डिफरेंस है, ये 3 है अगर 3 प्रीमियम है, और ये 2 है अगर ये 2 प्रीमियम है, ठीक है। तो ये लाइन बेसिकली ये बता रही है कि जो बायर है उसका प्रॉफिट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, मतलब वो इससे साथ जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा अगर आपका आपका उससे ऊपर फायदा हो जाता है तो $3 का आपका वैसे ही फायदा हो जाएगा, और जो सेलर है उसका जो है वो क्या चल रहा है, वो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर चल रहा है, विच इज सेलर प्रॉफिट विच इज x माइनस एस टी, ठीक है, x माइनस एस टी और प्लस C0, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। और उसे क्या हो जाएगा, अगर नीचे आते हैं तो उसे जो है वो ये वाले का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, x प्लस प्रीमियम जो है वो ब्रेक इवन स्टॉक प्राइस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे हैव बिल्ट दिस ग्राफ, सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्योंकि इसी ग्राफ की बेसिस पे हम आगे अभी पुट ऑप्शन का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उससे उल्टा होगा। अच्छा, इस सी नोट को हमने क्या बोला है, कॉल प्रीमियम बोला है। तो हमने अभी तक जो पीछे देखा था, हम जो है वो यहाँ पे रुक जाते थे, जो हमने बुक 4 में बात की थी, हम जो है वो यहाँ पे रुक जाते थे, हम प्रीमियम को जो है वो खातिर में नहीं लाते थे, प्रीमियम को एडजस्ट नहीं करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो प्रॉफिट है हमने कॉल की वैल्यू आ गई, एंड नाउ जो प्रॉफिट will be equal to CT, which is price of the call minus C naught, which is your premium, ठीक है। तो आपका जो भी प्रॉफिट आया है दैट शुड आइडियली बी हायर देन योर कॉल प्रीमियम, अदरवाइज यू विल बी एट अ लॉस, ठीक है। तो द प्राइस, और अच्छा जो कॉल का प्राइस है वो प्रीमियम पे भी डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है। जो मुश्किल या जैसे जैसे आपकी एक्स और एस में जितना ज्यादा फर्क होगा तो आपका प्रीमियम जो है वो उतना ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब जितने भी ज्यादा वॉलेटिलिटी को कवर करने की कोशिश कर रहे होगे आपका प्रीमियम उतना ज्यादा होगा, जितनी आप कम वॉलेटिलिटी को कवर करने की कोशिश कर रहे होगे उतना आपका प्रीमियम जो है वो कम होगा। दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास आल्सो, ठीक है। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन, उसी तरीके से आपका आ जाएगा पुट ऑप्शन। अगेन एग्जाम्पल पे आ जाए, 25 में है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, यू हैव ऑप्शन टू सेल। तो आप कब बेचेंगे, आप तब बेचेंगे जब आपको कम प्राइस हो जाएंगे, जब उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इन द कॉल ऑप्शन यू वांटेड बाय हार्ट, व्हेन यू टेक दैट बेट you wanted the price to increase, and in the put option is exactly the opposite. In the put option you want the price to actually decline, because the market rate is like 20, okay, and since you had your put option available you can sell it at 25, ठीक है। तो आपका वहां पे जो है वो रिस्क जो है वो कवर हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो पीटी क्या हो जाएगा, इट विल बी मैक्सिमम ऑफ 0, x माइनस एस पी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस में से माइनस कर रहे होंगे, पहले हम जो है वो क्या कर रहे थे, तो कॉल याद रख लें, कॉल एस टी माइनस एक्स और पुट x माइनस एस टी, ठीक है। कॉल एस टी माइनस एक्स, पुट x माइनस एस टी, ठीक है। तो उसे आप सी एस एक्स और पी एक्स एस के नाम से याद, तो पी एस एक्स होता है ना आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसे आप उल्टा कर दें, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, पी एस एक्स नहीं है, इट्स पी एक्स एस, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज इट। अगर आपको कोई बेहतर तरीका याद आ जाए इसे याद करने का तो आप उससे कर सकते हैं, बट यू कैन रिमेंबर इट एज सी एस एक्स एंड पी एक्स एस, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन 0 चल रहा है आपका, ठीक है, और x है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले कॉल में क्या हो रहा था, हमारा प्राइस बढ़ रहा था, ठीक है, तो हमें फायदा हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस हम देख रहे हैं कि अगर कम होंगे
x से, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपके प्राइस क्या हो गए यहाँ पे कम हो गए और आप इस रेंज पे ला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या थे 25 पे थे और यहाँ पे आपका प्राइस जो हो गया क्या हो गया 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, $4 का फायदा मिल रहा होगा, ठीक है। और अगर आपका प्रीमियम जो है ये वाली लाइन इधर जो आ रही है और ये प्रीमियम के साथ चल रही है, ठीक है, तो अगर वो लेट से प्रीमियम $3 है तो आपको ये जो फायदा हो जाएगा कितना हो जाएगा, $1 हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा इस लाइन से इस लाइन से लिए टू एडजस्ट दी प्रॉफिट। तो आपका क्या हो गया, x माइनस एस टी माइनस पी नॉट, जबकि पी नॉट क्या था आपका प्रीमियम था, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले का क्या होगा, हो जाएगा एस टी माइनस एक्स माइनस प्लस पी नॉट, तो एस टी माइनस एक्स तो जीरो ही हो जाएगा। तो आपका जो पी नॉट होगा अगर उसके एक्सरसाइज प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं तो उसे जो है वो उस प्रीमियम का जो है वो फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा पीटी माइनस पी नॉट, ठीक है। ये बायर का आ गया और सेलर क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पीटी। चलो इसका सवाल कर लेते हैं, हमें और क्लियर हो जाएगा। आज की जो एग्जांपल्स है ना वो ज्यादातर बड़ी इन्होंने सिंपल और बड़ी आप समझ लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी है। एग्जांपल क्या देते हैं कि हमें पे ऑफ निकालना है एक ऑप्शन का, तो क्या बोलते हैं कंप्यूट करें पे ऑफ और प्रॉफिट को किसके लिए, कॉल बायर के लिए, एक कॉल राइटर के लिए, पुट बायर के लिए और पुट राइटर के लिए, तो सबके लिए करवा दिया है, ठीक है। क्या बोलते हैं डेटा हमारे पास क्या है, स्ट्राइक प्राइस पुट और कॉल दोनों का क्या है $45 है, ठीक है। जो स्टॉक प्राइस है वो क्या है $50। जो प्रीमियम है कॉल का वो क्या है $3.5 है और जो प्रीमियम है पुट का वो क्या है 2.5, ठीक है। ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या आ गया, कॉल बायर का आ गया। कॉल बायर का हमें पता है क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ एस टी माइनस एक्स, ठीक है, माइनस सी नॉट, ठीक है, 0। तो क्या हो गया 50 एस है माइनस 45, तो क्या हो गया $5 आ गया। $5 में से हमने सी नॉट माइनस कर दिया तो 1.5 का हमारे पास क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कॉल राइटर की बात कर लेते हैं, कॉल राइटर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो पे ऑफ क्या होगा माइनस मैक्सिमम ऑफ एस टी माइनस एक्स, तो 0,50 माइनस 45, क्योंकि क्या हो जाएगा -$5 हो जाएगा। बेसिकली -5 क्या है, जो इसका फायदा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसने $3.5 पहले से लिए हुए थे पर कॉल ऑप्शन, तो जब उसमें से हम उसे माइनस करते हैं तो जो नुकसान है वो कितना रह जाएगा, वो $1.5 रह जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं पुट पे। पुट का आपको पता है कि क्या है, पी एस एक्स विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, अच्छा इसे कहते हैं ये जो ये निकलता है ना इसे कहते हैं पे ऑफ और इसे कहते हैं प्रॉफिट। तो जब हम सिर्फ निकाल रहे हैं कि कितना पे करना है दैट इज योर पे ऑफ एस टी माइनस एक्स या एक्स माइनस एस टी, और जब उसमें हम पे प्रीमियम मिला लेते हैं तो तब हम उसे बोलते हैं प्रॉफिट। जी हाँ सर। अवेश तो ये मतलब पे ऑफ सिंपली मींस कॉल ऑप्शन की वैल्यू, राइट? आई मीन यही होगा ना, पे ऑफ कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की वैल्यू एक्चुअली, नॉट वैल्यू
but the cash flow that you will be receiving based on the strike price and the maturity price. उसमें जब प्रीमियम एडजस्ट हो जाएगा तो दैट विल बी योर वैल्यू या दैट विल बी योर प्रॉफिट बेसिकली. ओके ठीक है. अच्छा नहीं, आप वैल्यूज पर्सपेक्टिव बोल रहे हैं. हाँ हाँ आप हाँ यू कैन से दैट हम पहले पीछे जो वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश कर एग्जैक्ट मतलब किसी हाँ, पॉइंट इन टाइम जो पे अगर कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालनी हो या पुट ऑप्शन की वैल्यू तो सिंपल वैल्यू माइनस स्ट्राइक प्राइस राइट मींस यही होगा ना ट्रेडेड वैल्यू माइनस स्ट्राइक. बिल्कुल. लेकिन यू कैन नॉट इग्नोर मतलब ओवरऑल वैल्यू की जब आप बात करेंगे कि आपको उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है तो उसमें तो आपका प्रीमियम एडेड होगा ना, क्योंकि डिपेंड करेगा कि जो चीज आपकी बड़ी है वो प्रीमियम से ज्यादा हो गई है कि नहीं हो गई है. आपका कॉल पे फायदा तो हो रहा है $3 का, बट आपने प्रीमियम में $5 पे किया होता. तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट स्टॉक प्राइसेस इन योर फेवर and it's actually increase as you expected, you will still be a loss because you paid a higher premium. You are expecting it to go higher than that. Okay, so you will have to take into account the amount of premium to calculate the actual profit or actual loss. एग्री गॉट इट. अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर पे ऑफ एग्जांपल जैसे कि सामने है कॉल ऑप्शन के पे ऑफ में $5 और प्रॉफिट है 1.5, मान लें कि अगर प्रॉफिट 1.5 ना हो लॉस हो तो इस केस में एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि पे ऑफ की वैल्यू पॉजिटिव है और प्रॉफिट नहीं है, लॉस है सिंपल. तो ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि कॉल ऑप्शन फायदे में है. नहीं करेंगे ना अगर आपको प्रीमियम मिला के फायदा नहीं हो रहा. जी देखिए उस पर डिपेंड करेगा. नहीं देखिए उस पर डिपेंड करेगा कि प्रीमियम तो आपको पे करना ही करना है ना. तो अगर आपको कुछ फॉर एग्जांपल आपने $3 का प्रीमियम है, ठीक है, तो ये तो आपके पे करना ही करना है. अगर आपको $1 1.5 का फायदा हो रहा है तो आपको जो टोटल लॉस होगा वो 1.5 का होगा, 3 का नहीं होगा. प्रीमियम तो यू हैव टू पे irrespective you exercise it or you exercise it not. ठीक है, तो you will not exercise only when you are actually having a loss on it, but even if you are getting an advantage, a profit of $1, that will be adjusted to your paid premium, so you will actually exercise it. ओके तो उसका मतलब कॉल ऑप्शन फायदा होगा तो एक्सरसाइज करेंगे बिकॉज़ प्रीमियम की वैल्यू संक कॉस्ट है, वो तो वैसे भी दे देंगे. Sunk cost. बिल्कुल. ओके गॉट इट. थैंक यू. Okay, so then we have it for put buyer. For put buyer, we will subtract from x minus s. It will come out to be 0, of course, and then you will minus this. You will use the premium value, which is $2.5. Okay, and in this particular case, क्योंकि आपका वो exercise नहीं हुआ, तो आपका जो put writer है उसे इस premium का फायदा हो गया. ठीक है, तो ये एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल थी टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दी पुट ऑप्शन है. अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे ऑफ की. कॉन्ट्रैक्ट पे ऑफ क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात कर ली कि जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट है कि आप फॉर आगे जाके कोई भी चीज खरीद रहे होगे एक एट अ गिवन प्राइस. ठीक है, तो इट्स नॉट एन ऑप्शन. ठीक है, तो आप ना कोई प्रीमियम पे कर रहे हो, यू आर जस्ट इट्स लाइक अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह स्पॉट का होता है, बट आप एक फॉरवर्ड डेट पे आके फॉरवर्ड डेट को कर रहे हो. तो उसमें होता क्या है? उसमें होता यह है कि आज आप खड़े हो और आपका डॉलर है 166 पे. ठीक है, और आपको क्या करना है? आपको जो है वो आपकी जो है वो फॉर एग्जांपल $1000 की आपने जो है वो पेमेंट करनी है. ठीक है, आपके पास जो है वो क्या है? पैसे हैं पीकेआर में एंड यू हैव टू पे इन यूएसडी. फॉर एग्जांपल आपने सीएफए या एफआरएम की फी पे करनी है. तो अगर तो आप मिडिल ईस्ट में हो तो आपको बहुत फायदा है क्योंकि आपकी करेंसी पैक्ड है, तो आपको टेंशन ही नहीं है कि जितना डॉलर ने मूव होना है उतना दरहम ने मूव होना है, उतना रियाल ने मूव होना है, उतना बहरीनी दिनार ने मूव होना है. इट्स हैज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, बट उसमें आपको नहीं है. अब आपको क्या लगता है? अब आपको ये लगता है कि भाई जो मुल्क के हालात है ना अभी वो बुरे चल रहे हैं और आगे जो है ना वो हमें हमारे रिजर्व्स हैं $12 बिलियन पे. ठीक है, और अगले हफ्ते हमारी जो है वो $4 बिलियन की रीपेमेंट है लेट्स से आईएमएफ को. ठीक है, अगर आप इस लेवल पे मौजूद है. ठीक है, ये जर्नली कंज्यूमर लेवल पे नहीं होता लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे ये बातें हो रही होती. तो आपको पता है जैसे ही ये 4 बिलियन निकलेंगे
आपकी रिजर्व पोजीशन आ जाएगी $8 बिलियन पे। तो आपको ये पता है कि जब करेंसी जो है वो आपकी ये कम होगी तो आपकी करेंसी पे जो है वो क्या आएगा, प्रेशर आएगा, ठीक है। और लेट्स अज्यूम कि आप ये भी अज्यूम कर लें एक साथ के जो ऑयल प्राइसेस हैं वो अभी $40 पे हैं और आप एक्सपेक्ट करें कि बढ़ के जो है वो $50 पे चले जाएंगे, तो वहां से आपकी इम्पोर्ट पेमेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको ये लग रहा है कि आपका जो ये है ना डॉलर, ये 166 से आराम से जो है 175 पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी आपके पास जो है वो 1,66,000 रुपए मौजूद है, सही है, तो आप जो है वो उससे क्या कर लोगे, आप $1,000 पे उसे आपको 1,66,000 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक हफ्ते बाद पेमेंट करनी है $1,000 की, तो आपको कितने की जरूरत पड़ेगी, आपको $1,75,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे खड़े होके जो है वो ये कर लोगे कि जी एक हफ्ते बाद फॉर एग्जाम्पल जो फॉरवर्ड डेट होगा वो मेरा 167 होगा, ठीक है। और आपने उससे जो है वो खरीदो फरोख्त कर ली, आपने ये कर लिया कि जब ये डेट आएगी 25 सितंबर लेट से, तो मैं आपको 1,67,000 दूंगा और आप मुझे USD 1000 वापस कर देंगे, ठीक है। इररिस्पेक्टिव, अब ये अगर आपने कर लिया तो ये 175 पे जाए, अगर 175 पे चला गया तो 175 माइनस 167 इंटू 1000 आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आपकी सारी चीजें जो है वो हो जाती हैं गलत और अचानक से चाइना कहता है कि ये लो बेल्ट एंड रोड पे तुम्हें मैं $10 बिलियन, चलो 10 तो ज्यादा होगा, $6 बिलियन दे रहा हूँ, ठीक है। और उधर से वर्ल्ड बैंक कहता है कि हाँ जो हमने कराची के लिए $10 बिलियन की बात की थी उसमें से $5 बिलियन की ट्रांच ये बनाए कराची को, ठीक है। तो ये 166 से ऊपर नहीं जाएगा बल्कि कहाँ पे आ जाएगा, 60 पे आ जाएगा शायद। देन यू विल बी हैविंग दैट मे बी लॉस ₹4 का पर, तो आपको 4,000 का नुकसान हो जाएगा शायद। तो दिस इज योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस। तो उसका जो पे ऑफ है वो क्या है, स्पॉट प्राइस माइनस डिलीवरी प्राइस है, ठीक है। तो स्पॉट प्राइस क्या है जो मैंने आपको बताया 166 और डिलीवरी प्राइस क्या है 167, ठीक है। और जो शॉर्ट पोजीशन पे अगर आप ले रहे हो, मतलब आप ये इस वक्त खरीदोगे के बाद में बेचोगे तो उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। और ये चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, पे ऑफ है कि अगर बराबर है आप स्पॉट पे तो आप जीरो हो गए, जैसे जैसे ऊपर जाते आओगे आपको फायदा होता है, नीचे आओगे आपको नुकसान होता जाएगा। शॉर्ट पोजीशन ये लॉन्ग पोजीशन है, जैसे जैसे इसकी बढ़ती जाएगी आपका फायदा बढ़ता जाएगा। शॉर्ट है अगर आप, तो आपको जैसे जैसे चीज कम होती जाएगी आपका नुकसान होता जाएगा। अच्छा छोटी सी एग्जांपल है कि जी दिया हुआ है कि फॉरवर्ड प्राइस ये है, प्राइस मेच्योरिटी ये है, तो पे ऑफ कैलकुलेट करें, लॉन्ग का क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, शॉर्ट में जो है इसमें से माइनस कर देंगे, सिंपल सा जो उन्होंने एक फॉर्मूले में बस वैल्यू डाल दिया है। फिर हमारे आ जाते हैं डेरिवेटिव ट्रेडर्स। अच्छा ये वाली बातें भी बहुत ज्यादा पहले हो चुकी हैं तो मैं इसमें कोई बात नहीं करूंगा। हेजर्स क्या होते हैं, जो रिस्क को मैनेज करते हैं, जो ये देखते हैं कि अगर रिस्क जो है वो हमारा जो भी मेरा एक्सपोजर है मैं उसे क्या कर लूं, कम से कम कर लूं। तो व्हाट दे ट्राई टू डू, they try to actually minimize their risk through hedging, ठीक है। तो ये आपकी hedging हो जाएगी। उसी में ये मैंने पहले ही बताया था, आज ही बताया था, ठीक है। अगर उसी में आप क्या करो, करेंसी लोगे, आप ये देखो कि आप अगेंस्ट बेट करो और आप ये देखो कि आप किस तरह पैसे बना सकते हो, तो इट विल बी स्पेकुलेशन। और अगर आप ऐसी चीज करो कि आपको ये लगे कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप कोई चीज खरीदो और बेचो एक साथ, तो आपका बीच में कोई फायदा हो जाएगा, तो उसे आप क्या कहते हो, आर्बिट्राज कहते हैं, ठीक है। आर्बिट्राज में हमने बुक 4 में जो है वो बाकायदा नुमेरिकल्स भी कहते हैं, आगे जाके भी हम आर्बिट्राज पे कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर 3 कॉन्सेप्ट्स जिसकी बेसिस पे हमारे ट्रेडर काम कर रहे होंगे। तो देयर विल बी हेजर्स, देयर विल बी स्पेकुलेटर्स, देयर विल बी आर्बिट्रेटर्स। हेजिंग स्ट्रेटजीज पे हम पहले बहुत बात कर चुके हैं, ठीक है। तो हेजर क्या करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं और ऑप्शन यूज करते हैं फाइनेंशियल एक्सपोजर को कम करने के लिए। अगर उसकी पोजीशन लॉन्ग है तो जी वो शॉर्ट फॉर फ्यूचर लेगा, अगर वो शॉर्ट है तो वो जो है वो लॉन्ग पे जाएगा। ऑपोजिट पोजीशंस आप लेते हैं, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं।
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लॉक करने के लिए हम करते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें कोई जरूरत नहीं, आगे हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ऑप्शन प्राइस में आपको जो है वो एक मार्जिन जो है वो देना पड़ता है टू हैव टू गेट दैट वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इसे हम इंश्योरेंस भी कहते हैं, हम बार बार कह चुके हैं इसमें, ठीक है, कि प्रोवाइडिंग डाउनसाइड प्रोविजन हमें क्या कहते हैं इसे एज अ इंश्योरेंस भी डील कर रहे होते हैं, और वहां पे क्या कर रहे होते हैं, हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है टू हैव दैट ऑप्शन। दो तीन एग्जांपल है, बहुत ही छोटी छोटी सी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कि क्या बोलते हैं कि जी एक कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स में, उससे जो है वो पेमेंट मिलनी है यूरो 10 मिलियन की 3 महीने में, ठीक है। तो यूरो 10 मिलियन कितने में, 3 महीने में। और वो उसे क्या फिक्र है कि यूरो जो है वो शायद डेप्रिशिएट हो जाए, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो क्या कर सकती है वो, ये कर सकती है कि द कंपनी and is contemplating using a forward contract to hedge the risk। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रही है वो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेना चाह रही है कि जी जो वैल्यू ऑफ डॉलर 10 मिलियन की यूएस डॉलर में, वो किस पे कर ले, 1.25 डॉलर पर यूरो पे ले ले, ठीक है। और दूसरा क्या है, द वैल्यू ऑफ द 10 मिलियन यूएस डॉलर्स एट मेच्योरिटी, वो किसने पे हो, वो 1.2 डॉलर पर यूरो पे, ठीक है। तो पहले उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हमने बेसिकली वो करना है कि वैल्यू क्या होगी मेच्योरिटी पे। तो आपने सिर्फ इसे जो है वो क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया आपका, और इसे आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका ये आंसर आ गया। अब ये आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इट विल डिपेंड के एक्चुअल जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो अगर एक्चुअल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये वाला लिया था, ठीक है, इस पे आपने किया था, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, सही है, और वो जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1.25 से चेंज होके अगर 1.3 पे हो गई, ठीक है। तो अगर 1.3 पे हो जाती, तो आप क्या, आप इससे अब डिवाइड करते $10,000 को 1.25 से, ठीक है। तो जो आपको वैल्यू मिलती वो एक वैल्यू मिलती, ठीक है। और अगर आप 1.3 से करते, तो जब आप 1.3 से करते तो एक्चुअल वैल्यू आपको कम हो जाती, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको डिप्रिसिएशन हो गई तो आप क्या होती है, आपकी बचत होती है, आपने हेज से ऑलरेडी कर लिया होता, ठीक है। तो यहाँ पे वो हेजिंग ज्यादा हुई भी है, यहाँ पे वो हेजिंग कम हुई है, बट इट विल डिपेंड के फ्यूचर में जाके एक्चुअल वैल्यू क्या है। इफ यू डोंट हैव एनी एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल, देन यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई के उसका फायदा हुआ कि उसका नुकसान हुआ। यहाँ पे उन्होंने सिंपल ये बताया हुआ है कि आप बता दें पोजीशंस क्या होंगी। आई थिंक आगे इन्होंने कहीं पे कैलकुलेशंस की करवाई हुई है, तो दिस वेरी बेस। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे इनका बताने का मकसद ये है कि इन दो चीजों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप उसे हैच कर सकते हो। अभी ये बात नहीं कर रहे कि आपको फायदा हुआ कि नुकसान नहीं हुआ, कह रहे हैं यू हैव दीज टू ऑप्शंस अवेलेबल, या तो 1.25 पे उसे लॉक कर लें, या आप उसे 1.2 पे उसे लॉक कर लें, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, हेजिंग है पुट ऑप्शन के साथ। क्या बोल रहे हैं, करंटली प्राइस है $30 पे, the investor is worried about the possibility of a drop in share price, ठीक है, कि क्या हो जाए, ऐसा ना हो कि प्राइस जो है वो कम हो जाए। कब कम हो जाए, अगले 3 महीनों में। और वो क्या कर रहा है, वो पुट ऑप्शन जो है वो खरीदने की सोच रहा है कि अगर मेरे पास पुट ऑप्शन होगा तो प्राइस कम भी हो गए तो आई विल हैव द ऑप्शन टू सेल एट अ हायर प्राइस, ठीक है।
तो उसमें इन्होंने 4 सिनेरियोज बताए हुए कि हमें उसकी कैलकुलेट करनी है वैल्यू। तो प्रॉफिट निकालना है अगर हमारे पास एक अनहेज पोजीशन हो, अगर एक्चुअल प्राइस क्या हो जाए $25 हो जाए, तो $30 था और हैजिंग हुई भी नहीं थी, तो अगर वो 25 पे चला गया तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा $5 का नुकसान हो जाएगा, कोई साइंस नहीं है, ठीक है। अगर वो बढ़ जाए और 35 पे हो जाए, अगर 35 पे बढ़ जाएगी तो 35 माइनस 30, तो आपको $5 का क्या हो गया, फायदा हो गया। अब बोलते हैं कि हमने जो है वो क्या किया हुआ था, हेज किया हुआ था, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कितने थे इन 3 months, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर अ hedge position of the stock price in 3 months is $25, $25 वो हो जाए और स्ट्राइक प्राइस क्या है 30 हो जाए, और प्रीमियम क्या हो जाए पुट का, वो 1.5 हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है x माइनस टी, ठीक है। तो 30 माइनस 25, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये देख रहा है कि हमें एक्चुअल उस पे क्या फायदा हुआ, मतलब जो एक्चुअल उसका स्पॉट आया, एक तो हेज किया था, तो हमारी ये वाली पोजीशन जो है ना, दिस इज टॉकिंग अबाउट द हेज पोजीशन एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल सेल और परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस। तो अगर वो 25 हो गए 30 की बजाय, पहले 30 थे अब 25 हो गए, तो यहाँ पे मुझे जो है वो इधर से $5 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है वो क्या होगा कि यहाँ से मुझे $5 का फायदा हो जाएगा क्योंकि मैंने हेज किया हुआ था, ठीक है। और उसकी जो मैंने पेमेंट की हुई थी वो क्या की हुई थी, एक मिनट, 25 माइनस 30, अच्छा देखें यहाँ पे तो उसका जो है वो, अच्छा यहाँ पे उसका क्या हुआ, 25 माइनस 30 उसका क्या हुआ, $5 का नुकसान हुआ, ठीक है। तो -5 आ गया, प्लस यहाँ से उसका $5 का फायदा हो गया तो 5 आ गया, और माइनस ये वाला जो है वो ऐसे आ गया, ठीक है। तो आपका जो एंड रिजल्ट आया वो कितना है, $1.5 आ गया, ठीक है, अगर आपने हेज किया हुआ था उसे इस पोजीशन पे। दूसरा, अगर आपने उसे हेज तो किया हुआ है लेकिन कितने पे किया हुआ, 35 पे किया हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपके स्टॉक आ गया 35 माइनस 30, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या हो गया, ₹5 का फायदा हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि आपके प्राइस जो है वो क्या हो गए, बढ़ गए, तो पुट में आप क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है अगर प्राइस बढ़ जाए, तो ये 0 हो गया, माइनस ये आपने प्रीमियम पे किया होता 1.5, तो ये क्या आ गया आपका 3.5। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेकुलेटिव स्ट्रेटेजीज की। स्पेकुलेटिव स्ट्रेटेजीज का मैंने आपको मतलब बता दिया था, when we are betting against the price and we want to make profit out of it, ठीक है। तो जी speculators have a different motivation for using derivatives than hedgers. They use derivatives to make bets on the market while hedgers try to eliminate exposures. The motivation for using futures in speculation is that limited amount of initial investment creates a significant leverage, ठीक है। मतलब आपके छोटी अमाउंट से भी आपके जो है वो नुकसान जो है वो ज्यादा हो सकता है, तो इस वजह से आप जो है वो फ्यूचर को उसमें रखते हो। Then the amount of investment required for future is the amount of initial margin required by the exchange. अच्छा होता क्या है, जब आप ये कह रहे हैं स्पेकुलेशन के लिए आप फ्यूचर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो जब भी आप फ्यूचर्स पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो फ्यूचर्स आपको पता है क्या होते हैं, ट्रेड एक्सचेंज पे जो है वो हो रहे होते हैं, ट्रेड हो रहे होते हैं। तो उसका जो तरीका है हम आगे आके बोलेंगे। तो किसी भी एक्सचेंज पे धंधा शुरू करने के लिए, अपना अकाउंट बनाने के लिए आपको $1 एक्स चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है।
इट विल वेरी कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, इट विल वेरी कि किस एक्सचेंज पे है, इट विल वेरी कि आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, इट विल वेरी, बट इट कैन बी अ स्टैंडर्ड अमाउंट आल्सो। सो ये मार्जिन क्या होता है, ये मार्जिन वो अमाउंट होती है, फॉर एग्जांपल आपने डॉलर 10,000 रुपए जमा करवा दिए हैं, ठीक है, तो अगर आप भाग जाते हो, ठीक है, इफ यू हैव लॉसेस एंड यू रन अवे एंड यू डोंट पे टू द काउंटर पार्टी, देन exchange use this margin amount to pay to the other counterparty, ठीक है। And then we have this terminology that we initially talk about, which is margin call. So for example, you submitted $10,000 but you had a loss of $5,000, so your remaining margin moves down to, let's say, $5,000, but you have to have at least $10,000 to manage the account, okay? So then the exchange will call you and they will say that you need to actually give an amount of $5,000 to the exchange to be able to operate in your account, okay? So this is what we call margin and this is what we call as margin call. तो जी मार्जिन कॉल हो गई आपकी। फिर कहते हैं कि जी जैसे जनरली स्मॉल पर ये बता दिया, स्मॉल परसेंटेज ऑफ द नोशनल वैल्यू होती है। ट्रेजरी की सिक्योरिटीज भी जमा कर, फॉर एग्जांपल आप पीआईबी जो है वो जमा करवा दे सकते हो एज अ मार्जिन, ठीक है। हमारे तो ऑफिशियल इस तरह की रेट नहीं है, बट यू कैन यूज दैट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन रिजल्ट इन लार्ज गेन और लार्ज लॉसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट पे ऑफ आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल से मुराद ये कि एक बायर है और एक सेलर है, तो क्योंकि प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं है तो जो बायर का नुकसान होगा वो सेलर का फायदा होगा, जो सेलर का नुकसान होगा वो बायर का फायदा होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ सिमेट्रिकल पे ऑफ, और इन अदर वर्ड्स zero sum game. Zero sum game is something that we have been using for a very long time. We discuss it in initial discussion that we had on the derivatives, but it is largely the amount that the concept that your gain might also. Okay, so when profit of seller plus loss of buyer is equal to zero, then we call, इसे $4 का फायदा हुआ, इसे $4 का नुकसान हो गया, ठीक है, तो इसे जो सम किया तो क्या आ गया, जीरो। तो दिस इज व्हाई वी कॉल इट जीरो सम गेम, because the resultant of the profit and loss of buyer and seller will result in zero. Okay, so then the option also create a significant leverage, as investor only need to pay the option premium to purchase an option instead of the face value of the option. ये मुझे सवाल आया था, I think Haris asked it, that if we have to hedge a position of $10 million, will I need a $10 million to hedge that position, or what will be the requirement? So I told him that you will just be need the premium to pay it, okay, and whatever the differential would be at the maturity, that is something that you will have to pay. So to enter into an option contract, you don't need a lot of money, you need the premium. So your chances are limited, but in the futures, obviously you have a higher exposure. So we are talking about options also create leverage. So option from, अच्छा इसमें फर्क क्या है? Option differ from futures in that option has asymmetrical, मतलब उसके पेमेंट जो पे ऑफ होते हैं वो जरूरी नहीं है कि मेरा फायदा आपका नुकसान हो, क्योंकि उसमें प्रीमियम भी इन्वॉल्व हो जाता है। Here I'll be losing some amount in the premium, and it's not like my gain, your loss. It can be different also. Gains can be quite large from going long option, but losses from long option position are limited to the option premium. सबसे ज्यादा आप क्या लॉस कर दोगे ऑप्शन में, आप जो है वो सिर्फ उसका जो प्रीमियम है, you will be losing that. तो यहाँ पे फिर इन्होंने एक वो दिया हुआ एक एग्जांपल बताई हुई है कि आप फ्यूचर्स के साथ जो है वो स्पेकुलेशन किस तरीके से कर सकते हो। तो कहते हैं कि जी एक इन्वेस्टर है that believes that the euro will strengthen against the dollar over the next 3 months, ठीक है, तो यूरो जो है वो क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, अप्रिशिएट हो जाएगा अगेंस्ट द डॉलर नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और वो क्या लेना चाहता है, वो यूरो 250,000 की पोजीशन लेना चाह रहा है, ठीक है, ओके।
तो ही कुड परचेज, अच्छा क्या क्या कर सकता है, ही कुड परचेज यूरोज इन द स्पॉट मार्केट पॉइंट at $0.8 per euro, okay, or purchase two future contracts of $0.83 per euro, okay, तो एक स्पॉट पे ले सकता है और एक उस पे ले सकता है, तो एक ऑप्शन ये हो गया, दो ऑप्शन यहाँ पे हो गए, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या हो गया कि जी वो दो फ्यूचर ले ले, सॉरी ये दूसरा ही है ये, और कितने पे ले ले, मार्जिन जो उसे देना पड़े वो क्या देना पड़े, $10,000, मतलब ये जो अमाउंट है जो उसे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी टू गेट दैट फ्यूचर, ठीक है, इन दी एक्सचेंज, इतना आपको मार्जिन देना पड़ेगा। क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, चार सिनेरियोस बताए हैं इन्होंने। पहले सिनेरियो में क्या है कि परचेज करना है आपने यूरो स्पॉट मार्केट में, अगर स्पॉट रेट 3 महीने में क्या हो जाए $0.85 हो जाए, परचेज किया आपने यूरो स्पॉट मार्केट में, अगर जो है वो $0.75 पर यूरो हो जाए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिए और 3 महीने में, मतलब ये बेसिकली ऑप्शन है कि स्पॉट है आपके पास कि नहीं है। स्पॉट ऑब्वियसली आपने किस पे खरीदा होगा, आपने जो है वो इस पे खरीदा होगा, इस अमाउंट पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम स्पॉट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तीसरे में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो आपकी अमाउंट है, ठीक है, आपने जो है वो जो ठीक अभी कहते हैं जो फॉरवर्ड प्राइस हो गया वो कितना हो गया, वो 0.85 हो गया, सही है, और आपने कितने पे खरीद लिए थे, खरीद के आपने रख लिए थे कितने पे, इतने पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, यूरो जो है वो डिप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट डॉलर, तो 0.80 से क्या हो गया 0.85 हो गया, ठीक है। तो आपने उस पर कितने बना लिए, $12,500 बना लिए, ठीक है। जैसे सिंपल, मतलब आपने लिया और इतने लेके खरीद लिए स्पॉट प्राइस पे, उस वक्त जब लिया था तो एक जो है वो यूरो, एक जो वो मिल रहा था वो 0.8 का मिल रहा था, ठीक है, एक यूरो को बेच के, और वो कितना हो गया 0.8 से 0.85 हो गया, तो पर पैरिटी आपको 0.5 का फायदा हो गया बेसिकली, $0.5 का, ठीक है, और उसे आपने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, इससे, तो आपके $12,500 आ गए। दूसरा सिनेरियो क्या बोलते हैं कि आपका जो है वो कम हो गया, मतलब डेप्रिशिएट नहीं हुआ, एप्रिशिएट हो गया और 0.75 पे आ गया, ठीक है। तो 0.75 माइनस 0.8 कितना हो गया 0.5 का, देखिए 0.5 का क्या हो गया आपको, अब नुकसान हो गया, आपने खरीदे हुए जो है वो इतने पे थे और अब आपको जो असल वैल्यू हो गई वो जो है वो इतनी हो गई, ठीक है, तो आपको इतने का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अगर आपने फ्यूचर लिए हुए होते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में क्या है वैल्यू, फ्यूचर में आपकी 0.83 पे लिया हुआ है आपने, तो यहाँ पे $5,000 का फायदा हो जाएगा, और अगर आपको यहाँ पे लिया हुआ तो आपको जो है वो इससे आप इससे माइनस कर लेंगे, विच विल बी 0.8 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल बी योर लॉस, ठीक है, ऑन फ्यूचर्स। इसी को इन्होंने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी, कितने पे खरीदा था आपने, ठीक है, इतना फायदा हुआ इतना नुकसान हुआ, यहाँ पे ये मार्जिन था आपका, इतना फायदा हुआ और इतना नुकसान हुआ। तो इन्होंने सिर्फ जो है वो क्या बताई हुई है, इन्होंने ये ऑप्शंस बताए हुए कि अगर आप फ्यूचर करते तो क्या फायदा होता है और स्पॉट करते तो क्या फायदा होता है, टू गिव यू अ फ्लेवर कि कैसे उसका फायदा होगा, कैसे नुकसान होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एक्चुअल कब कैलकुलेट कर सकेंगे, जब आपको जो है वो ये पता होगा कि एक्चुअल पे प्राइस जाके क्या बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने उस एग्जाम्पल बताया, उसी को एक्सटेंड करते हैं उसी एग्जाम्पल को, ठीक है, और ये कहते हैं कि एक इन्वेस्टर है, उसके पास $30,000 इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है,
और अच्छा उससे वो नहीं हुआ, ये अलग एग्जाम्पल, सॉरी। और जी जो प्राइस है XYZ का, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बढ़ जाएगा, ठीक है, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, XYZ का प्राइस बढ़ेगा 3 महीने में, ठीक है। अच्छा करंट प्राइस क्या है, $30 है। ऑप्शन क्या है कि जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दे स्टॉक में, मतलब उसे खरीद, ठीक है, पहला ऑप्शन परचेज। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो 3 मंथ का कॉल ऑप्शन ले ले, क्या करे, 3 मंथ का कॉल ऑप्शन। फिर उन्होंने दोबारा ऑप्शन, अच्छा वो किस पे ले, स्ट्राइक प्राइस 35 पे, और उसके जो प्रीमियम वो $3 होगा। फिर दोबारा कहते हैं, 4 ऑप्शन बताते हैं कि जी डायरेक्ट इन्वेस्ट किया हुआ 45 पे पहुंच गया, डायरेक्ट इन्वेस्ट किया हुआ 25 पे गिर गया, ऑप्शन लिया हुआ है 45 पे बढ़ गया, और ऑप्शन लिया हुआ 25 पे कम हो गया, ठीक है। क्या होगा, 30,000 के इन्वेस्ट करने के थे, $30 का जो है वो आपका वो था शेयर प्राइस, तो आपके जो स्टॉक आए होंगे वो कितने आए होंगे, वो 1000 आए होंगे, ठीक है। अच्छा तो 1000 पे जब वो बढ़ गया तो आपको पर उस पे कितने का फायदा हो गया, $15 का फायदा हो गया। ये तो आपने एग्जैक्ट खरीदे हुए थे, मतलब एक्चुअल पोजीशन दी हुई थी, तो कितना हो गया, $15,000 का फायदा हो गया। ये कम हो गया तो $5 का क्या हो गया, नुकसान हो गया आपको, तो ये कितना हो गया, $5,000 का नुकसान हो गया। कॉल ऑप्शन कितने खरीदेंगे, $30,000 इन्वेस्टमेंट है आपके पास, और आपको सिर्फ कितने पेमेंट करना है, $3 की पेमेंट करनी है फॉर द प्रीमियम। तो आप कितने कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, आप 10,000 कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। वहां पे तो आप एक्चुअल खरीद रहे थे ना, तो आपको ज्यादा पैसे चाहिए, $30 चाहिए, अब आपको $3 चाहिए, तो यू कुड परचेज 10,000 ऑफ द कॉल ऑप्शंस। एक्चुअल क्या हो रहा है, पहले सिनेरियो पे ये बढ़ गया, $10 का फायदा हो गया, 10 पे से आपने $3 माइनस कर दिए, $3 माइनस कर दिए, तो 10,000 पे आपको कितना हो गया, $70,000 का जो है वो फायदा हो गया, ठीक है। तो आपको फायदा ज्यादा हो रहा है, लेकिन नुकसान भी क्या हो रहा है, अगर वो नीचे आ गया तो आपको पर उस पे क्या हो गया, $5 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। और आपने जो है वो प्रीमियम तो पहले किया हुआ ही था, ठीक है, तो $5 का नुकसान वो हुआ, और $3 का आपने प्रीमियम पे किया होता है। 30,000 क्यों आ रहा है, इट शुड आइडियली 80,000 इफ आई एम नॉट मिसिंग इट। जब वो बढ़ जाएगा तो आप उसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या लूज करोगे, आपने जो ये प्रीमियम पे किया हुआ ये लूज करोगे, ठीक है। और वो प्रीमियम आपने कितने का पे किया हुआ था, $10,000 के लिए किया हुआ था, विच इज जो आपने यहाँ पे बेसिकली ये कैलकुलेट किया था, तो आपकी जो लॉस हो जाएगा वो सारे के सारे $30,000 है, यू विल लूज ऑल ऑफ देम। फिर कहते हैं एक नोट है कि जी जो जर्नल अजम्पशन नहीं है कि एक कॉल में जो है वो 100 कॉल ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे आप जो है 100 की नोट खरीदोगे। उसे समराइज कर दिया कि 10 यहाँ पे 1000 खरीदे आपने, यहाँ पे 10,000 खरीदे, अगर 45 पे चला जाएगा तो इतना फायदा होगा, और उस पे चला जाएगा तो इतना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में आपको फायदा भी कम है और नुकसान भी कम है, और ऑप्शन में आपको फायदा भी ज्यादा है और नुकसान भी ज्यादा है। ओके, आर्बिट्रेटर्स क्या होता है, आर्बिट्रेटर्स आपको पता है जो बीच में से जो है वो पैसे बनाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि मार्केट डिस्क्रिपेंसी है, वहाँ पे वो पैसे बनाते हैं, ठीक है। तो रिस्क एसेट बनाते हैं, एक जगह से चीज खरीदेंगे, दूसरी जगह से ऑफसेटिंग पोजीशन लेके बेच देंगे, ठीक है। उसी की इन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल बताई हुई है कि जी DEF ट्रेड्स हैं, न्यूयॉर्क एक्सचेंज पे हो रही हैं, और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही, दो जगह जो है वो स्टॉक इसका ट्रेड हो रहा है। ट्रेडर क्या देखता है कि NYSE पे $32 का है, ठीक है, और TSE में जो है वो 2,880 येन का है, ठीक है। जो कन्वर्टेबल रेट चल रहा है वो ये चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि
8880 जिसने का वो चल रहा है, और जो कन्वर्टेबिलिटी है 0.015 वो एक्चुअली कितने बन रही है 30.24 बन रही है। तो इसके प्राइस टोक्यो एनवाई में जो 32 के चल रहा है और यहाँ पे 30.24 के चल रहा है, सही है। तो क्या करेगा वो जो है वो यहाँ पे खरीद लेगा 30.24 का और यहाँ पे बेच देगा, तो वो पर स्टॉक जो है वो 1.76 का जो है वो प्रॉफिट कमा लेगा। ऐसा जनरली होता नहीं है, ये प्राइस एक साथ ही चल रहा होता है, बट जस्ट होता भी है तो वो 0.01 का होगा, बट अगर वो 1 लाख रुपए 1 लाख डॉलर की कर दे और 0.01 भी बचा ले तो वो क्या कर लेगा, उस पर जो है वो $10,000 उसके बच जाएंगे, ठीक है। रिस्क क्या है जी, डेरिवेटिव बहुत वर्सेटाइल हैं, हेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, आर्बिट्राज के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर मार्केट आपके बैठ के अगेंस्ट चले जाए तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे बेरिंग बैंक में हमने पढ़ा था जहाँ पे डीलर ने बहुत ज्यादा वो ले ली थी, ठीक है। फिर जी रिस्क एग्जिस्ट करता है जहाँ पे जो है वो जब ट्रेडर को हैज की पोजीशन की जाए वो जो है वो स्पेकुलेशन करना शुरू कर दे, ठीक है। तो उसे हम क्या करते हैं ऑपरेशन रिस्क कहते हैं, फ्रॉड में भी आता है और वो नॉट फॉलोइंग दी कमांड्स या अनऑथराइज्ड ट्रेड्स में भी आ जाता है, ठीक है। तो उसके कंट्रोल्स होने चाहिए और रिस्क लिमिट प्लेस होनी चाहिए टू कीप मॉनिटरिंग इट।